Human circulatory system. Human circulatory system involve number of systems जैसे इसमें we will be studying heart, arteries, veins, capillaries, lymphatic system, exchange of tissue fluid, clotting mechanism, electronic cardiography. तो ये इसके मेजर मेजर अच्छा और हाँ सर्किट्स ऑफ मटेरियल एक्सचेंज भी हमें इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले बात शुरू करनी पड़ेगी हार्ट से। हार्ट conical muscular pumping organ made up of cardiac cells or tissues what is special about cardiac cells or tissues? These cells have excess of mitochondria, so they should never have lack of energy, right? Excess mitochondria इनके पास मौजूद है, ये खास बात है। हार्ट, ये मेमेलियन हार्ट has 4 chambers, right? हाँ, mammalian heart has 4 chambers, right? 4 chambers में 2 atria and 2 ventricles. एट्रिया को ऑरिकल भी कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, this is the left side, right side of heart. Atria, ventricle. So this will be left atrium, left ventricle.
right atrium, right ventricle. But remember, whenever you are studying heart, remember your Lord. Lord means left oxygenated, right deoxygenated. Right? जी सर. जी सर. Now, if I make a ray diagram of heart, ray diagram means in terms of boxes, if I try to explain about parts of heart, so this will be left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Left atrium is connected with pulmonary veins, which are bringing oxygenated blood from lungs. इसको मैं ब्लू बना लेता हूँ क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड पार्ट से एसोसिएटेड है. Now this is connected from two parts. This is superior vena cava. This is inferior vena cava. Vena cava are those collector funnels. This is collecting deoxygenated blood from upper body, and this is collecting it from deoxygenated blood from lower body. In order to separate left and right side, there's a part which is called median septum. Right? Now, and there are openings of each atrium into ventricle. This is called mitral valve, or you can call it bicuspid valve. This is tricuspid valve.
These valves open on every beat to transfer the blood from atrium to ventricle. One complete circulation, one beat consists of two sounds, a softer sound and a heavier sound. Softer sound is because of the closing of softer sound is because of closing of bicuspid and tricuspid valves. So on first contraction, सर ये ट्राइकुस्पिड वॉल्व क्या है? ये रहा. जी सर, इसका फंक्शन क्या है इसका? The function, it regulates the transfer of blood from right atrium to right ventricle, and it opens when the softer sound is produced by heart. That means it is contracting, right? सही सर, थैंक यू सर. हाँ, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड रिवर्स मूवमेंट ना कर सके. Okay. Now, both of these valves, the wall underneath right ventricle and the wall underneath left ventricle, are thickly muscled. There are thick muscles are noticed in this region, right? So once the blood on the first beat, blood transfer from atrium to ventricle in both of the atria to ventricle fills up with the blood, this with oxygenated and this with deoxygenated. Then second beat occur, which is heavier one, denser one, right, blood from left ventricle moves into, arrow का color change करूं, moves into aorta, from where it splits into two parts, blood for upper body, blood for upper body and blood for lower body. And both bloods are oxygenated. When both of these blood moved into, this goes to upper body region, provides oxygen and becomes deoxygenated and moved back to heart through right atrium. Similarly, the blood from lower body moves into heart from lower vena cava or inferior या posterior vena cava. ठीक है, और दोबारा से ट्रिपल. Blood from right ventricle moved into pulmonary artery, where it reaches to lungs, gets oxygen and get back to
heart through pulmonary vein. जल्दी से कॉपी करो सर. Is that making some sense? क्या ये अंडरस्टैंडेबल है? सर बस ये मुझे जी बता सर। दें, जो सॉफ्टवेयर साउंड है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? क्लोजिंग ऑफ ये बाइकस्पिड बाइकस्पिड और वॉल से। ट्राइकस्पिड के बंद होने की वजह से. अच्छा सर, जिससे ऊपर वाला ब्लड जो है वो नीचे वेंट्रिकल पे आता है उसका? अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? मैं पूछा था, जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे आता है लेफ्ट एट्रियम में, तब इसलिए हम्म. वेंट्रिकल में। हाँ, तब आवाज आती है. और जब ये एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जी जी। तो जब इसके वाल्व्स बंद होते हैं तो हार्ट साउंड आती सर ये साउंड वाला मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। है. देखो, जब वाल्व बंद होते हैं ना, तो दे क्लैप. ठीक है. सही सर, सही सर। और इस क्लैपिंग की ब्लड जब इसमें मूव कर जाएगा ना, लुक एट दिस, इसमें मूव कर जाएगा तो वाल्व ओपन हो जाएगा. और जैसे ही जी पूरा जी। ब्लड अंडर ट्रांसमिट होगा तो दीज वाल्व, सेमी वाल्व, व्हेन दे क्लैप, द सेकंड साउंड अराइज फ्रॉम देयर. अच्छा सर, सही सर। कॉपी करो जल्दी से. कर लिया सर कॉपी मैंने। How is this? Is this informative यस सर। and easy to learn as well? जी। एक मिनट, ये बेकदर भी कॉपी कर लेते हैं. हो गया सर, मेरा भी हो गया। ठीक है. ओके. अब एक बात याद रखें. There are three type of circulation that occurs from heart. एक कहलाती है कैरोटिड, बल्कि एक मिनट को, this is actually called double circulation. डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, जो मैंने उस दिन भी बताया था. ब्लड फ्रॉम hands first need to go to heart, then to lungs, then back to heart, then any other organ. तो 2 दफा हार्ट से गुजरना जरूरी है. ओके. ये कैसा ब्लड है? Deoxygenated blood going into heart. Then this will be pulmonary artery. This will be pulmonary vein.
and this is oxygenated blood going into whichever respective organ that artery will be used to convey that. ठीक है, अब यहां से वापसी का सिलसिला देख लो. Back to heart, heart to lungs, lung to heart. तो यानी always blood transfer like moves through heart twice. Once it goes from one organ to another. ठीक है, so it happens that way. Now, अब सर्कुलेशन के दो रीजन, एक है कैरोटिड और दूसरा है सिस्टमिक. कैरोटिड सर्कुलेशन को अपर बॉडी सर्कुलेशन भी कहा जा सकता है, और सिस्टमिक को लोअर बॉडी सर्कुलेशन. तो यानी यहां मुझे एक चीज देखनी पड़ेगी, एओर्टा से आने वाला ब्लड 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट. यह है एओर्टा, ये लेफ्ट कैरोटिड, राइट कैरोटिड, लेफ्ट सिस्टमिक, राइट सिस्टमिक, राइट. तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को, एक मिनट, कैरोटिड का काम क्या है? कैरोटिड सप्लाईज, अच्छा ये कैरोटिड वगैरह आर्टरी नहीं है, इनको हम कहते हैं आर्चेस. व्हाट आर आर्चेस? वेरी बिग आर्टरीज. ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी आर्टरीज. तो कैरोटिड का काम क्या है? सप्लाइज ब्लड इन ब्रेन, माउथ और ओरल कैविटी, कैविटी, अच्छा जी. उसके बाद फोर लिम्स, जबकि सिस्टमिक आर्च moves into all systems where it supplies blood in all parts, including hind limbs. hind limbs मतलब पाँव, लेकिन हमारे यहाँ ठीक है. तो ये मेरे पास पहले दो डिस्ट्रीब्यूशन हो गए. अब जरा देखिए, अब एक साइड में आर्टरी रखूंगा, दूसरी साइड वेन रखूंगा.
पूरा सर्किट बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको हार्ट को रख लेते हैं, यहाँ ब्रेन को, यहाँ लंग्स को, यहाँ इंटेस्टिन को, और यहाँ किडनीज को। ठीक है, ब्रेन, हार्ट से ब्रेन, हार्ट से सब तक। ब्लड हार्ट से लंग्स तक जाएगा। ये वाहिद आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेट ब्लड लेके जाती है। जबकि इधर, ओहो माय गॉड, कहाँ चला गया? ब्रेन, हार्ट से ब्रेन तक जाने वाली, इसको हम कैरोटिड कह देते हैं, ताकि मसला ही खत्म हो जाए। जिसकी आर्टरी या आर्च और वो उसकी वेन। हार्ट से लंग तक आने वाली पल्मोनरी आर्टरी, लंग से हार्ट तक आने वाली पल्मोनरी वेन। लेकिन दिस इज द ओनली वेन दैट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ओनली। ठीक है, इसके साथ दिस इज इंटेस्टिन, दिस विल बी कॉल्ड mesenteric artery. mesenteric artery लिवर के थ्रू होती हुई गुजरती है। चलो वो तो मैं आगे भी चल के बता सकता हूँ। यहाँ इसको मिटा लेते हैं। चलो अब इसको लंग्स ही रहने देते हैं, इसको मिटाने के छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा चेंजेस आएंगी इसमें, लेकिन पूरा सर्किट हो जाएगा। ये हो गया लिवर, ये हो गया इंटेस्टाइन। अच्छा यहाँ देखो, कहाँ जा चले गए? ओ माय गॉड, मिटाया जा रहा है। ठीक है, इंटेस्टिन से ब्लड डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जाता, लेकिन किसके पास जाता है? ओके, तो ये हो गई मेसेंट्रिक आर्टरी विच इज ब्रिंगिंग ब्लड टू इंटेस्टिन। दिस विल बी हेपेटिक आर्टरी, दिस वन हेपेटिक, दिस इज मेसेंट्रिक। मैं यहाँ से इसको मिटा दूँ ताकि आसानी हो जाए समझ। ओहो, ये हेपेटिक, ये मेसेंट्रिक,
और ये स्पेशल है हेपाटिक पोर्टल वेन। ये कौन सी है? हेपाटिक पोर्टल वेन। अभी क्या है, क्यों है, थोड़ी देर में देखते हैं। ये क्या हो जाएगी? रीनल आर्टरी। ये हो जाएगी रीनल वेन। ये हो जाएगी हेपाटिक वेन। ये हो जाएगी पल्मोनरी वेन। ये हो जाएगी कैरोटिड की वेन। तो ये पूरा सर्किट मेरे पास बन जाता है, ठीक है। और इस सर्किट से मुझे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, जिसको मुझे अभी देखना है। ओके, नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ दिखा रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड एंड deoxygenated blood is moving that way। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ हार्ट यूं ऊपर जाएगा, बाकी सब जगह नीचे जाएगा, राइट जी। कॉपी कीजिए इसे। सर ये मिजेंट्रिक वेन लिवर और इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है? नहीं, mesenteric is bringing blood from heart to intestine, hepatic is bringing blood to liver। बट mesenteric ओके की सर। कोई वेन नहीं होती। तुमने देखा कि इसको मैंने मेन ट्रैक से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। इसको कॉपी जी करो। सर।